Hello everyone. Today I want to share my views on history of class 12th of chapter number 4 Thinkers, Beliefs and Building Cultural Development. Part number 3. Earlier I have discussed the two parts of this chapter. Now in this chapter I want to discuss some views on stups, Sanchi Stup, Amravati Stup, some religions like Jainism, Vaishnavism, Shivaism and early temples. How did early temples develop, like that, some important points. Okay, now first of all we will start with the stups. What are stups? Number 1, Buddhist literature mentions several chaityas which are places associated with the Buddha's life. Number 2, stups contained relics, bodily remains of Buddhas or object used by them, regarded as sacred. The entire stups came to be venerated as an emblem of both the Buddhas and Buddhism. In Buddhist literature, chaityas are very important. Now the question has arisen, what are chaityas? Chaityas क्या है? Chaityas are some important place associated with Buddha's life. एक ऐसा पुण्य स्थल बौद्ध धर्म का जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा की जाती है. दिस इज कॉल्ड चैत्यास. ओके, नाउ नंबर 2, व्हाट इज रेलिक्स? अवशेष, कुछ ऐसे अवशेष जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हमें मिली हैं. इट इज कंसिडर्ड इन द स्तूप्स. ओके, नाउ बौद्ध और बौद्धिज्म का प्रतीक माना जाते हैं. ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं, वो अवशेष मिले हैं, वो स्तूप में कंसीडर किए जाते हैं. ओके, स्तूप में ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, लाइक दैट. नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अशोकवदना, Ashoka distributed portions of Buddha's relics to every important town, ordered the construction of stup over them. This text, Ashokvadana, is very important, and Ashoka, in the period of Ashoka, Ashokvadana has written. Okay, and in this topic, in this text, there is a description of Buddha's relics. Okay, some important towns and construction of stups. How did stups constructed and how did towns made? Okay, and some Buddha's relics. Number 4, by the 2nd century BCE, a number of stups in Behut, Sanchi and Sarnath was built. When did stups built and where did built? There is a question arise of 1 marks. The number of stups built in 2nd century, where Bharat, Sanchi or Sarnath, like that. Number 5, stups were built from the donation made by king, guilds, common people, bhikshus and bhikshunis. कई तरह के स्तूप बिल्ड किए गए, बनाए गए, बट किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ किंग, गिल्ड्स, कॉमन पीपल, आम लोगों की सहायता से, भिक्षुज और भिक्षुनुस की सहायता से. ओके, लाइक दैट, बाय द हेल्प ऑफ डोनेशन. नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप कंप्रोमाइज्ड सेवरल पार्ट्स. स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप में कई तरह के पार्ट्स बनाए गए या मिले हुए हैं, जैसे अंदा, ANDA, हर्मिका और यक्षी. व्हाट डज अंदा मीन्स? अंदा मीन्स, ANDA means semi-circular mound of earth. Earth गोलाकार shape. Okay. Hermika, balcony-like shape. Yashki, like mast-like shape. Okay. These are the structure of stup. And chhatri or umbrella. And number 7, some important points. There are some important points. Number 1, प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ. ऐसे प्लेसेस जो बुद्धा की लाइफ से संबंधित है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, वेयर बुद्धा वाज बोर्न. बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में. इट इज़ द 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट.
उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। वेयर बुद्धा अटेंड निर्वाणा, निर्वाण उन्होंने कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, दीज आर 4 places which is associated with Buddha's life. Okay, concept of Great Sanchi Stupa. Now I want to discuss with the Great Sanchi Stupa. Number 1, the Great Stupa of Sanchi in the state of Madhya Pradesh is one of the most wonderful Asian building 19th century. Europeans was very interested in the stupa at Sanchi. Where there the question has arisen, where did the stupa of Sanchi situated in Madhya Pradesh? Who are interested? Europeans. Number 2, the rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and Sultan Jahan Begum provided money to preserve the site of Sanchi Stupa. Here the question has also arisen that who preserved the site of Sanchi Stupa. Okay, so rulers of Bhopal have preserved the Sanchi Stupa. Okay, Shahjahan Begum, Sultan Jahan Begum. Number 3, John Marshall wrote important वॉल्यूम्स ऑन सांची. सांची के ऊपर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स यानी कि इम्पॉर्टेंट बुक्स किसने लिखी? जॉन मार्शल ने. नंबर 4, द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म. सांची की डिस्कवरी यानी कि सांची स्तूप की डिस्कवरी के बाद जो है बुद्धिज्म जगह जगह पर फैला. ओके, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एशियंट साइट because archaeological department give a preservation to the Sanchi Stupa. Okay, so it's a very important Sanchi Stupa. Okay, number 2, this is the description of the great Sanchi Stupa. Okay, number 2, concept of Amravati Stupa. In 1854, Walter Elliot visited Amravati and collected several sculptures, panels and discovered the remains of Western Gateway. 1854 में वॉल्टर इलियट अमरावती गए, वहाँ पर उन्होंने कई तरह के स्कल्पचर्स कलेक्ट किए और उन्होंने कई तरह की डिस्कवरीज की. बट ही केम टू बी कंक्लूजन दैट स्ट्रक्चर एट अमरावती वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट स्तूप. दे केम टू बी कंक्लूजन दैट अमरावती वॉज ए ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्तूप है. बट unfortunately, Amravati did not survive as sculpture from this site were removed from the site instead of preserving things where they were found. But Amravati को preserve नहीं किया गया archaeological department के द्वारा. Okay, due to few reasons like that. Now after that I want to discuss the concept of Jainism, the message of Mahavira. Okay, number 1, philosophy of Jaina already existed before the birth of Mahavira in the 6th century. Philosophy of Jains, जैन धर्म का जो सिद्धांत है जो वो महावीर के जन्म से पहले ही शुरू हो गया था. कब? 6th century BC में. ओके, नाउ नंबर 2, वर्धमान who came to be known as Mahavira. वर्धमान को क्या कहा जाता है? महावीरा. And was preceded by 23 other teachers और तीर्थंकर according to Jaina tradition. जैन धर्म के अकॉर्डिंग टीचर्स का क्या नाम था? तीर्थंकर. और वो कितने थे? 23. ओके, नंबर 3, तीर्थंकर आर दी टीचर्स. तीर्थंकर्स क्या कौन थे? वो ऐसे टीचर्स थे. दीज आर दी टीचर्स who guide the people, who guide the men and women to come to be existence. अपने अस्तित्व को पहचानो, वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को पहचानो. These are the तीर्थंकर्स. जैन धर्म में वो ऐसे अध्यापक हैं जो अस्तित्व तक ले जाते हैं. ओके, number 4, the most important idea in Jainism is that entire world is animated. Even stones, rocks and water have life. इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या है जैनिज्म में कि इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. पूरा संसार एनिमेटेड है, अपने आप में जीवित है. कुछ भी किसी हर एक चीज़ में जीवन है. इवन स्टोन, रॉक्स, वाटर हैव लाइफ. पत्थर में, रॉक्स में, पहाड़ों में, पानी में, हर एक में जीवन है. कोई भी निर्जीव
कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है। नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ हिंसा एम्फेसाइज्ड विद इन जैनिज्म हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क्स इन इंडियन थिंकिंग एज ए होल। अहिंसा के धर्म पर उन्होंने जैनिज्म ने जोर दिया। इट बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। Number 6, according to Jain teaching, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. It is important that, according to karma, the cycle of birth and rebirth is issued. Okay, जन्म और पुनर्जन्म कर्म के आधार पर है। अच्छा काम बुरा काम के आधार पर ही जन्म और पुनर्जन्म बेस है। ठीक है, वही उसका आधार है। कर्म इज द बेस, कर्म इज द बेस ऑफ द बर्थ एंड rebirth. Okay, like that. According to Jain teaching, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. Okay, according to karma, it is solved this cycle of birth and rebirth. कर्म करना ज़रूरी है। कैसा कर्म है उसके आधार पर बर्थ और रिबर्थ का आधार बनता है। Number 7, asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world. अंतरावास, अपने मन की अंतरावास, सेल्फ डिसिप्लिन, इनर वॉइस, सेल्फ मेडिटेशन से फ्री है साइकिल। ये सब चीज़ें किससे फ्री हैं? साइकिल ऑफ कर्म से। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइकिल ऑफ कर्म। कर्म के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड नहीं है। क्या? सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मेडिटेशन, इनर वॉइस ऑफ आवर माइंड। ओके, दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ये हमें कैसे मिल सकती है? पूरे विश्व को, अपने संसार को त्याग करके। जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा पूरा दिनचर्या है, उन सब को त्याग करके हमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मेडिटेशन, अपने अंतर मन को हम सुधार सकते हैं। हम किसे पा सकते हैं? सेल्फ मेडिटेशन को पा सकते हैं। ओके, बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइकिल ऑफ कर्मा। ओके, नंबर 8, जैनिज्म monk and nun took 5 vows to abstain from killing, stealing and lying. 5 कस्में जैन धर्म के साधु और जो साध्वीज हैं वो अपनाते हैं। किसी जीव को मारना नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, एंड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू अब्सटेन फ्रॉम प्रॉपर्टी। किसी तरह का किसी से कोई संबंध नहीं रखना और प्रॉपर्टी को सारी संपत्ति को छोड़ देना है। नंबर 9, ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैनिज्म भारत के सभी हिस्सों में फैला। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस ए वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। कई तरह की लैंग्वेजेस में जैन स्कॉलर्स ने जैनिज्म धर्म को स्प्रेड किया, साहित्य को बनाया, लाइक प्राकृतिक, संस्कृत और तमिल। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। इन विच लैंग्वेज the literature has established in Jainism? Prakritik, Sanskrit and Tamil. Okay. Now the other concept is the concept of Vaishnavism and Shaivism. What is Vaishnavism and what is Shaivism? The concept of Vaishnavism is the form of Hinduism. Hinduism की form है in which विष्णु was worshipped, जिसमें विष्णु की पूजा की जाती है एज ए प्रिंसिपल डिएटी, मेन चीफ गॉड के रूप में। इन शैविज्म द शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड। शिवा को एक चीफ गॉड के रूप में पूजा जाता है। इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन डिवोटी एंड द गॉड वॉज विजुअलाइज्ड एज द लव एंड डिवोशन और भक्ति। भक्त और भगवान के बीच की भक्ति को नापा जाता है, उसकी तुलना की जाती है, लव और डिवोशन को देखा जाता है। ओके, लाइक दैट। Number 2, in Vaishnavism, cults develop around the various avatars or incarnation. Vaishnavism में कई तरह के अवतार हुए। 10 avatars are there in the tradition. Number 3, some of the avatars were represented in sculptures. कई अवतार कलाकृतियों के रूप में किए गए। फॉर एग्जाम्पल, शिवा वॉज सिम्बोलाइज्ड इन द लिंगा। शिवा को किस रूप में देखा गया? लिंगा के रूप में। एंड देर आर सम अदर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स। ओके,
Now the early temple, there is a description of early temples also in this chapter. The early temples was a small square room called the Garbhagriha. In the early temples there are some features like number 1 Garbhagriha, Shikara, artificial caves, huge rocks, Ajivika sects. Okay, these are some 3 or 4 points. So what is Garbhagriha, what is Shikara, like that. What is Garbhagriha? Garbhagriha is a small square room in which a worshipper is entered and offer worship to image. Or a Garbhagriha is a small square room with a single doorway, एक ओके लाइक दैट, जहाँ पर वर्शिपर पूजा करने के लिए जाता है अंदर एंट्री करके. ओके, सो गर्भगृह इज ए स्मॉल स्क्वेयर रूम. नंबर 2, व्हाट इज शिकारा? शिकारा इज ए टॉल स्ट्रक्चर विच वॉज बिल्ड इन द सेंट्रल श्राइन. बीच मध्य में बनाया जाता है. टेम्पल वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर्स, कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं तरह तरह की. ओके, टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स. कई तरह की कलाकृतियाँ टेम्पल वॉल्स के ऊपर बनाई जाती हैं. नंबर 3, one of the unique feature of the early temple was that of the hollowed one of the huge rocks as artificial caves. Some of the earliest of these were constructed in 3rd century. Most of the caves, most of the huge rocks that is decorated with sculptures and was built in 3rd century BC. This is a question of 1 marks. Here there is a question of 1 marks all of what is Shikara, what is Garbhagriha, what is in which the mostly temples when built, कब बनाए गए? in 3rd century BCE में बनाए गए. शिकारा क्या है? टॉल स्ट्रक्चर है. गर्भगृह क्या है? स्मॉल स्क्वेयर रूम है. Okay, in which the worshipper enter and offer worship to the image. A single doorway है उसका. ठीक, like that. These are some important questions and some important here one question is also that जो अर्ली टेम्पल्स बनाए गए वो कब बनाए गए? अशोक के समय में बनाए गए. कौन सा सेक्ट था उस समय? अजीविका सेक्ट था. ओके, नाउ नंबर 4, इन द 8th century कैलाशनाथ नेम ऑफ शिवा वाज बिल्ड. कैलाशनाथ टेम्पल कब बनाया गया? 8th century में. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, 1814 फाउंडिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता. कोलकाता का इंडियन म्यूजियम कब बनाया गया? 1814 में. 1834 पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज बाय द राम राजा कनिंघम एक्सप्लोर द स्तूप एट राजनाथ. दो चीज़ें हुई कि राजा राम ने हिंदूज के लिए एसेस का पब्लिकेशन एस्टेब्लिश किया 1834 में. दूसरा, सारनाथ में स्तूप को एक्सप्लोर किया, मीन्स डेवलप किया कनिंघम ने 1834 में. ओके, नाउ नंबर 3, 1851 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास. मद्रास में गवर्नमेंट म्यूजियम की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1851 में. इन 1878 राजेंद्र लाला मित्रा पब्लिश बोध गया को पब्लिश किया राजेंद्र लाला मित्रा ने 1878 में. द हेरिटेज ऑफ साक्या मुनि. 1880 में H.H. कोल अपॉइंटेड क्यूरेटर ऑफ एशियंट मोनूमेंट्स. ओके, तो एशियंट मोनूमेंट्स के क्यूरेटर कौन अपॉइंट हुए? H.H. कोल. ओके, 1989 में सांची डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ 1989 में सांची. 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सेज दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम का फाउंडेशन के लिए नींव रखी गई 1955 में. किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू ने. ओके, नाउ द टाइमलाइन. नंबर 1, 468 BC महावीरा पास्ट अवे एंड अटेन निर्वाणा एट द एज ऑफ 72. महावीर जैन धर्म के जो मुख्य गुरु थे महावीर, उन्होंने कब निर्वाण प्राप्त किया? 468 BC में. कौन सी एज में? 72 में. नंबर 2, 563 BCE गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन ए शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन कपिलवस्तु. ओके, कपिलवस्तु में क्षत्रिय फैमिली में, शाक्य क्षत्रिय फैमिली में उन्होंने जन्म लिया. किसने? गौतम बुद्ध ने 563 BCE में. नंबर 3, 1st century BCE जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खालावेला. ओके, नंबर 4, 4th century BCE जैनिज्म स्प्रेड इन कलिंगा एंड उड़ीसा. उड़ीसा में जैनिज्म
फैला 4th सेंचुरी BCE में। नंबर 5 487 BCE द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, कब हुई, 487 BCE में। 387 BCE द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, 387 BCE में। 251 BCE द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, 251 BCE में। ओके, तो these are some important points that I want to discuss with you, and I hope so that you like my video, and this topic was closed. And so please like my video, share my video, and subscribe my channel. Okay, thank you.